Good morning to one and all students. ये जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स का हमारा जो लेक्चर चल रहा है, उसी लेक्चर में जो बेसिक थिंग्स है, यू आर सम ऑफ देम वेल नोन अबाउट इट, बट वी वांट टू रिवाइज them because mathematics is the subject which is interrelation between them. मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, हम बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन जो आर्टिकल हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत हम सॉलिड्स के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। सॉलिड्स में 3 डायमेंशनल उसको डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी होती है, उसमें 3 चीजें होती है, एजेस, वर्टेक्स एंड फेसेस। फेसेस मीन्स प्लेन, एजेस मीन्स लाइन सेगमेंट एंड वर्टेक्स मीन्स द कॉर्नर पॉइंट where 3 lines, more than 2 lines intersect each other. उसमें हमने एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड एरिया ऑफ क्यूब भी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। तो अभी हम आज के लेक्चर में जो रिमेनिंग सॉलिड्स है, इसमें कोन है, सिलेंडर है, स्फीयर है, उसके वॉल्यूम, एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। जो सॉलिड कर्व्ड सरफेस का होता है, उसमें 2 एरिया होते हैं, एक बेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। उन दोनों को मिलाकर जो एरिया बनता है उसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं सम सॉलिड्स। नाउ स्टूडेंट्स, यस फर्स्ट टर्म का एग्जांपल जो अपना बकेट है, जो कुंडी होता है, दैट इज द शेप ऑफ फर्स्ट टर्म। Now the next solid is cylinder. Having a lateral surface and 2 congruent circles having a lateral surface that is curved surface and 2 circles at 2 ends, 2 congruent circular faces. yes, and 2 congruent circles two congruent circular cross section. This is about the cylinder. Now we draw for example सर ये भी आ सकते हैं ना, दिस 2 congruent
And parallel circular faces are end of it. यस, ये दो सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट है एंड पैरेलल है एक दूसरे को। जो पाइप होता है उसका एग्जांपल हम कहेंगे जार होता है, सर्कुलर पिलर होते हैं, ड्रम होते हैं। एक्सिस जो सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करता है वो लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। नो, इस सर्कुलर पार्ट को हम जनरेटर कहते हैं। और एक चीज इसमें हाइट, तो इसका एग्जांपल है स्टूडेंट सर्कुलर पिलर, जार, पाइप एक्सेट्रा। एक्सिस line joining the centers of two circular cross section is called as axis. Line joining the centers of two circular cross section right circular cylinder when axis is perpendicular to circular cross section right circular cylinder when axis is perpendicular to circular cross section when axis is right circular cylinder किसे कहते हैं when axis is perpendicular to circular cross section। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को एक्सिस अगर परपेंडिकुलर होता है then we call it as the right circular cylinder। Generator line parallel to axis and lying on the lateral surface generators when lines parallel to axis and lies on lateral surface lateral, that is curved surface, lines parallel to axis and that lines are lies on the lateral surface, that is called generator। ये दो जनरेटर है स्टूडेंट, ये एक और इस साइड में जो है that is the generator of cylinder। base we know that the circular end, lower circular end is called the base when cylinder
is in vertical position. Lower circular end is called as base. Lower circular end is called as base of cylinders, students. Height h, we call it is denoted by h. Distance between two circular ends Radius. now. Next, total surface area. Total surface area of Total surface area, base area plus curved surface area. Base area plus curved surface area. स्टूडेंट्स, अगर दोनों एंड को दो सर्कल से, तो बेस एरिया क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और ये जो सर्कुलर सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो एरिया होता है दैट इज 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच. इसमें 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, दैट इज आर प्लस एच remaining. This is about the total surface area of cylinder, and volume of cylinder pi r square h. yes, Pi r square h. very good, very good. Volume pi r square h. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा गया है, if you want to find out the curved surface area of a cylinder, then that is 2 pi r h, and total surface area, that is 2 pi r into r plus h. इस दोनों में थोड़ा सा फर्क ध्यान में रखिए. कर्व्ड सरफेस एरिया, if you want to find the curved surface area, then find out 2 pi r h, and if you want to find the total surface area, then you find out 2 pi r into r plus h. r 2 pi r plus h आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट. इसमें थोड़ा सा बी केयरफुल. टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया डिफरेंट होता है. कर्व्ड सरफेस एरिया में दो एंड में जो सर्कल्स है उसका एरिया ऐड होता है. And total surface area of a cylinder is base area plus curved surface area. Base area है pi r square plus r 2 pi r square, that is 2 pi r square, and curved surface area है 2 pi r h. कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ ये हेलो
सिलेंडर होता है उसका एरिया होता है दो सर्कुलर एंड छोड़कर जो हेलो पोर्शन होता है उसका एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। जो 3 डायमेंशनल लिख रहे हैं। ओके लिखना स्टूडेंट्स लिखिए। हो गया स्टूडेंट? यस। ओके ओके देखिए सिलेंडर जो होता है हैविंग लैटरल कर्व्ड सरफेस एंड टू कॉन्ग्रुएंट circular cross section axis, the line joining centers of two circular cross section. Right circular cylinder, when axis is perpendicular to circular cross section, generators lines parallel to axis and lies on lateral surface, that is generator. Base, when cylinder is vertical position, lower circular end is called as base. Height, the distance between two circular ends is called as height of the cylinder. Now curved surface area 2 pi r h होता है and
total surface area, that is base area plus curved surface area, 2 pi r square plus 2 pi r h, and volume of a circle, volume of a cylinder, that is pi r square. देखो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज pi r square h. नाउ स्टूडेंट्स, जिसमें ये जो रेडियस है, ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उस सर्कल का रेडियस होता है, एंड हाइट, जो दो सर्कुलर एंड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज हाइट ऑफ अ सिलेंडर. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सॉलिड के बारे में अब डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज कोन. कोन कैसे फॉर्म होता है ये देखेंगे स्टूडेंट्स. ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है स्टूडेंट्स. इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो वर्टिकल पॉइंट है, वर्टिकल लाइन है, उसको फिक्स रखेंगे और इस एंड को सर्कुलर रोटेट करेंगे. देखो स्टूडेंट, इस साइड को फिक्स रखेंगे और इस साइड को ऐसा रोटेट करेंगे. इस सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर पूरे सर्कल में इसको रोटेट करेंगे, तो हमें ये जो पोर्शन इसने मूव किया है, दैट इज नोन एज कोन. ऐसे कोन फॉर्म होता है स्टूडेंट्स. नाउ यू ऑल नो अबाउट द कोन. कोन के क्या होता है? सर्कल, एक कर्व्ड सरफेस होता है ऊपर वाला, और नीचे क्या होता है? सर्कल होता है. कोन का बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊंगा, जो बर्थडे पार्टीज में छोटे बच्चे जो कैप पहनते हैं, दैट इज द परफेक्ट शेप ऑफ कोन. बट कोन आपको कर्व्ड सरफेस दिखता है, लेकिन कोन कैसे फॉर्म होता है? ये यस, आइसक्रीम का कोन होता है. कोन कैसे फॉर्म होता है स्टूडेंट्स? राइट एंगल्ड ट्रायंगल के जो वर्टिकल लाइन है उसको फिक्स करके जो दूसरा एंड को हमने एक राउंड सर्कुलर पोजीशन में उसको घुमा दिया, तो जो पोर्शन में वो मूव होता है, दैट पोर्शन इज नोन एज कोन. दैट पोर्शन इज नोन एज कोन. कोन में क्या होता है? एक कर्व्ड सरफेस होता है एंड सर्कुलर बेस होता है स्टूडेंट्स. कोन में दो हाइट होती है, एक स्लैंट हाइट, इस हाइट को हम कहते हैं स्लैंट हाइट. इट इज डिनोटेड बाय L, एंड दिस इज द हाइट H, वर्टिकल हाइट. एंड जो कर्व्ड पोर्शन में जो हाइट होती है, दैट इज नोन एज स्लैंट हाइट एंड वर्टिकल हाइट, एक्चुअल हाइट. तो देखिए स्टूडेंट्स, और एक इसमें है, जो कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम की 1/3 होता है. अगर जो सर्कुलर बेस है उसका रेडियस एंड हाइट h इक्वल है. समझो, एक सिलेंडर लिया आपने,
एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो हाइट है, डायमीटर ऑफ सर्कल, ये हाइट अगर इक्वल है, ये रेडियस और इस जो बेस का रेडियस इक्वल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसमें आर एच इक्वल है, तो सिलेंडर की हाइट 3 टाइम्स होती है कोन के हाइट के। सिलेंडर की हाइट 3 टाइम्स होती है द हाइट ऑफ वॉल्यूम, सॉरी, सिलेंडर का वॉल्यूम 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन। एंड कोन को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, द वॉल्यूम व्हेन बेस रेडियस एंड height of cone and cylinder are equal, then volume of cone is 1/3 the volume of cylinder। ये एक इंटर रिलेशन है इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स। नाउ we discuss about the cone in detail। Have curved surface with cone, have curved surface with volume V and circular base with radius R and center O। ठीक है स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, देन वी गॉट कोन। नाउ एक्सिस ऑफ सर्कल, ये जो वर्टेक्स है और ये बेस सर्कल का जो सेंटर है, उसको ज्वाइन करने वाले लाइन को हम कहते हैं एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स V and center of base circle is known as axis of cone। Line joining vertex and center of base circle। सेकंड पॉइंट है हाइट ऑफ कोन। दैट इज, ये जो वर्टेक्स V है एंड ये सेंटर O है, दैट इज इसके डिस्टेंस को हम कहेंगे हाइट VO।
ये एक्सिस की जो लेंथ होती है उसी को हम हाइट कहते हैं स्टूडेंट्स। स्लैंट हाइट और लैंड हाइट। लैंड हाइट डिस्टेंस of vertex from any point of the base. Distance of vertex from any point of base. It is denoted by L, and L equals to under root R square plus H square. Length height find out करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ हाइट ये होती है लेंथ हाइट L equal to under root R square plus H square. This is the formula to find out the length height. Now, the cross section of cone parallel to base, the cross section of cone is parallel to base circle. The cross section of cone parallel to base is a circle. The cross section of cone parallel to base is a circle and perpendicular to base is an isosceles triangle, and perpendicular to base is an isosceles triangle. मीन्स अगर इस कोण को अगर आप बेस के पैरेलल को अगर एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो आपको एक सर्कल मिलता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ कोन पैरेलल टू बेस, अगर ये बेस है इसको अगर आप पैरेलल एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं इसका तो आपको एक सर्कल ही मिलेगा। सर स्क्रीन शेयर किया है किसने तो भी। ओके 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 राहुल, आपको सेशन में से निकाल दूंगा, ऐसा मत करा करो। एक कोण है उसका क्रॉस सेक्शन बेस को अगर पैरेलल लेते हैं तो आपको एक सर्कल ही मिलेगा, एंड इस कोण को तो उनका अगर आप परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा। आइसोसेलेस जिसमें दो साइड की लेंथ इक्वल होती है और अपोजिट एंगल इक्वल। अगर आप इस तरह से एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं परपेंडिकुलर, then you will get isosceles triangle.
This is about cross section of cone, students. Now volume is equal to 1/3 of the volume of cylinder. Volume of cone is 1/3 of the volume of cylinder. That is volume of cone is 1/3 the volume of cylinder when height and radius of base are equal. Now curved surface area. Curved surface area. Curved surface area is pi r l. इसमें land height भी होती है स्टूडेंट्स. Curved surface area is pi r l. And total surface area. Total surface area, that is pi r square plus pi r l. Total surface area is pi r square plus pi r l. So right circular cone can be formed by rotating a right angle triangle by rotating a right angle triangle about its right angle forming side. About a right angle forming side. Right angle forming side. Right circular cone can be formed by rotating right angle triangle about right angle forming side. राइट एंगल फॉर्म करने वाला जो हाइपोटेनस है उसके अगर हम मूव करते हैं रोटेट करते हैं तो वी कॉल कूल राइट सर्कुलर.
सर आई थिंक ब्लूटूथ प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है। ओके, कनेक्टेड है सर। शायद मुझे वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके ओके, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। कंप्लीटेड स्टूडेंट्स, बोर रेडी कंप्लीट हो गया तो हम अगला सॉलिड्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
surplus side. Okay. Sir, done. हो गया कंप्लीट स्टूडेंट्स? सर उस लास्ट के कॉर्नर में क्या लिखा है? 7th वाला पॉइंट. A right circular cone can be formed by rotating right angle triangle about right angle forming side. About right angle forming side.
ओके स्टूडेंट, देखिए अभी आपके करियर के अबाउट, एनडीए के प्रिपरेशन के अबाउट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। घर पे रहकर भी आप ये ऑनलाइन लेक्चर्स के बाद इसके ऊपर होमवर्क जरूर करना है। रिवीजन अगर आप रेगुलरली इसके करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। आज जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए आरडी शर्मा की बुक्स हैं, उसमें से आप बेसिक कंसेप्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप today's lecture is fruitful for you. Thank you very much. Thank you, sir. कुठं गुड मॉर्निंग सर। कडे एक नंबरची कलिंद्री सर